I show you a simple truth right now. एक सरल सत्य मैं आपको दिखाता हूँ, How the death of one man for all should also be received by every individual. कैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से स्वीकार करना है। So what does hyper grace means? तो ये ऊंची अनुग्रह का मतलब क्या है? Now this is doctrine of the devil. और ये ही शैतान का एक सिद्धांत है। Since the grace of God was manifested to die for our sins, जबकि परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए प्रकट किया गया है कि हमारे पाप के लिए वो मरने पाए, therefore no matter how you live now will not affect your salvation. इसलिए आप किसी भी तरीके से जीवन व्यतीत करिए, वो आपके उद्धार पर असर नहीं करेगा। Which means you can continue to live in a sinful lifestyle. जिसके मतलब एक पापी जिंदगी शैली में आप लगातार जी सकते हैं। It will not affect your salvation because the grace of God has already died for you on the cross. वो आपके उद्धार पर कोई असर नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए जो प्रभु का अनुग्रह क्रूस पर पहले से ही मर चुका है। This is hyper grace teaching. यही ऊंची अनुग्रह की शिक्षा है। Do you think it is right? क्या आप सोचते हैं सही है? The Lord Jesus Christ died for everybody on the cross. प्रभु यीशु मसीह सबके लिए क्रूस पे मरे हैं, But every individual must personally appropriate the blood of Jesus Christ on their hearts. मगर हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से उस लहू को अपने हृदय में लागू करना है। So this again totally throws down the doctrine or the false demonic doctrine of inclusive theology. और फिर से ये बातें जो शैतान की ओर से आई हुई उस धर्म में ज्ञान सब शामिल है, उसे नाकाम कर देता है। I lay this warning before you. ये चेतावनी आपके सामने रखता हूँ। Do not embrace this doctrine of demon, of hyper grace and inclusive theology. शैतान के धर्म में ज्ञान को अब स्वीकार मत करिए, ऊंची अनुग्रह और सब शामिल की धर्म ज्ञान। Come out of the Babylonian wrong gospel. दुष्ट की ये झूठी सुसमाचार से सब बाहर आइए। So the Melchizedek is like the son of God. मिल्कीसेदेक परमेश्वर के पुत्र के समान है, And he is a priest forever. वो सदा के लिए याजक है। Now look at this title, priest forever. इस नाम लेख को ध्यान दीजिए, सदा के लिए याजक। What does it really mean? वाकई में इसकी मतलब क्या है? A priest is someone who draws a person to God. याजक एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को परमेश्वर तक ले जाते हैं। So it is the act of continually drawing man to God forever. एक ऐसा काम जो लगातार मनुष्य को परमेश्वर की ओर खींचता रहना है। And to keep on drawing man closer and closer to God until man comes and sits beside God on his throne. लगातार वो परमेश्वर की उस नजदीकी में और नजदीकी में लोगों को ले जाना, जब तक वो व्यक्ति परमेश्वर के बगल में वो विराजमान ना हो जाए। This concept is written very beautifully in Proverbs chapter 8. इस विषय के बारे में नीति वचन के पुस्तक 8 अध्याय में सुंदर रीति से लिखा हुआ है। There it shows us the relationship between God the Son and God the Father. यहाँ पर पिता परमेश्वर और परमेश्वर यीशु के साथ रिश्ता के बारे में लिखा गया है। You must understand one very important fact. एक हकीकत को महत्वपूर्ण जो है उसे आप समझना जरूरी है। The title, the Son of God, is given to the Lord Jesus Christ in his manifestation for the salvation of mankind. जो नाम लेख परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया गया जब इंसानों के उद्धार के लिए जब वो प्रकट किए गए। Some other religions wrongly accuse Christianity that there are three gods. बाकी के धर्म के लोग गलत रीति से दोष देते हैं कि वहां पर मसीहत में 3 ईश्वर है। The scriptures say very clearly. वचन स्पष्ट हमें बताता है।
There is one God, एक ही परमेश्वर है, no three gods. तीन परमेश्वर नहीं हैं। They appear in three forms, तीन आकारों में प्रकट होते हैं, but only one God. मगर एक ही परमेश्वर है। So, in Proverbs chapter 8, we see the beautiful relationship between a son and the father. और इसी वजह से नीति वचन 8 अध्याय में एक अच्छा जो रिश्ता देखते हैं पिता और बेटे के बीच में। And there it is written, I am continually a delight to the father. वहां पर लिखा हुआ है, मैं लगातार पिता में मग्न रहता हूं। And John chapter 1 verse 18 says, the Lord Jesus Christ continually dwells in the bosom of the Father God. यूहन्ना पहला अध्याय के 18 पद में इस प्रकार लिखा गया है कि पिता परमेश्वर के गोद में लगातार यीशु बने रहते हैं। So what is the bosom? गोद क्या होता है? That is this chest area. और ये छाती के इलाका है। So lying on the bosom means छाती में लगे रहने का मतलब है like how a mother would embrace a baby close to her chest. जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने छाती के और करीब में डालती है प्रेम में। So the baby is abiding in the mother. वो बच्चा माँ में बना रहता है। That should be our resting place. अब वो हमारा विश्राम का स्थान है। So many years ago, I was traveling from Brisbane to Sydney. बहुत साल पहले मैं ब्रिस्बेन से सिडनी की ओर यात्रा कर रहा था And we entered into severe bad weather. हम अचानक बहुत ही गंभीर एक बुरी मौसम में घुसे। The plane was rocking very badly. हवाई जहाज बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहा था। Everybody was frighteningly holding on to the handle of the chair. हर एक घबराए हुए अपने कुर्सी की हाथों को पकड़े हुए थे। Even I did that. मैं भी ऐसे ही किया था। It was really a very scary experience. बहुत ही डरावनी अनुभव रहा। A few people were even screaming. कुछ लोग चिल्ला भी रहे थे। Then I turned to my left to see how other passengers were behaving. मैं अपने बगल की ओर मुड़ के देख रहा था कि मेरे सह यात्रीगण लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं। Just 2 seats across me, दो कुर्सी के उस तरफ में I saw a young girl. मैं वहां पर एक जवान लड़की को देखा। She couldn't have been more than 6 years old, 6 साल से अधिक नहीं हुआ होगा उसका उम्र, or maybe 3 or 4 years old. हो सकता है 3 या 4 साल की। She was holding a teddy bear वो एक टेडी बेयर पकड़ी हुई थी and she looked so calm, very peaceful, no any sign of fear at all. बहुत ही आराम, बहुत ही सुकून और उसमें कोई भी लक्षण नहीं था डर का। I wondered how is it that this little girl can be so fearless. मैं सोचने लग गया ये छोटी बच्ची कैसे निडर रह सकती है। Then I found the secret. तब मैं उस रहस्य को पता किया। Her mother's hands were upon the little girl उसकी माँ की हाथ उस छोटी बच्ची के ऊपर था and her back was lying on the bosom of the mother. और उसकी पीठ उस माँ की छाती के ऊपर झुका हुआ था। That was the place of safety and rest for the little girl. उस छोटी बेटी के लिए वही एक आराम का और सुकून का स्थान है। With her mother's loving embrace, उसकी माँ की प्रेम पूर्वक गले लगने की वजह से this little girl knew no danger will come to her. और वो छोटी बच्ची जान लिया था मेरे लिए कोई खतरा आने वाला नहीं है। This is the place of rest we are called to come to. और इसी विश्राम के स्थानों में हम बुलाए गए हैं। In Hebrews chapter 4 we read like that. इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं, There is a rest for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम है That is the true Shabbat rest, और वो ही सच्ची सबत की विश्राम है, where we cease from striving. परिश्रम से हमें रोका जाता है। We rest in God. परमेश्वर में हम विश्राम पाते हैं, Rest in His confidence.
उनके साहस में विश्राम पाना, Rest that He will protect us, take care of us, provide for us. और विश्राम जहां हमें आराम मिलता है, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे लिए प्रबंध किया जाता है। This is the rest we must come into. और इसी विश्राम में हमें भी आना है। That is the place of abiding and resting in God. और वही वो स्थान है जिसमें बना रहना, परमेश्वर में विश्राम पाना। How does the Melchizedek draw a person to God? कैसे एक मिल्कीसिदक मनुष्य को परमेश्वर की ओर ले चलता है। Let's take for example of how he related himself to Abraham. हम उदाहरण स्वरूप देखने पाए कि कैसे वो अपने आप को अब्राहम के साथ तुलना करते हैं। In Genesis chapter 14, we read that Abraham met with the Melchizedek. उत्पत्ति 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं अब्राहम मल्कीसिदक से मुलाकात करते हैं। That was the first time Abraham is meeting the Melchizedek. और यही पहली बार है अब्राहम मल्कीसिदक से मुलाकात कर रहे हैं। As soon as he saw him, तुरंत उसने देखा, something moved inside Abraham to worship him. कुछ ऐसी बात हुई उसके दिल के अंदर कि अब्राहम ने उनके दंडवत किया। Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, it also prompted Abraham to offer tithes of all his income to Melchizedek. अब्राहम को यह भी प्रेरित किया गया कि वो अपने सारे कमाई में से अपना दशमांश उसके लिए भेंट चढ़ाए। And what did the Melchizedek do after receiving tithes from Abraham? मिल्कीसिदक अब्राहम से दशमांश पाने के बाद क्या किया? Genesis chapter 14 verse 18 tells us उत्पत्ति 14 अध्याय का 18 पद कहता है that the Melchizedek served Abraham bread and wine. मिल्कीसिदक ने अब्राहम के लिए रोटी और दाखरस पिलाया। Since Melchizedek was made like the Son of God, the Lord Jesus Christ, therefore he served Abraham the communion. क्योंकि मिल्कीसिदक परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप ठहराया गया है, इसलिए अब्राहम के लिए उन्होंने प्रभु भोज बांटा। Isn't it amazing? क्या ये बात अद्भुत नहीं है? What the Lord Jesus Christ did in the New Testament was previously done by the Melchizedek thousands of years earlier. नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया था हजारों साल पहले मिल्कीसिदक ने अब्राहम के लिए किए हैं। Now this proves that the Melchizedek was made like the Son of God. और ये साबित करता है मिल्कीसिदक परमेश्वर के पुत्र के समान ठहराया गया है। So what did he serve Abraham? अब्राहम के लिए उन्होंने क्या दिया? Bread and wine. रोटी और दाखरस। Now in the communion that the Lord Jesus Christ served, जो प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह ने बांटा था, in Matthew chapter 26 verse 26 we read the Lord Jesus took bread and gave to his disciples. मत्ती 26 अध्याय के 26 पद में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को लिया, अपने चेलों को दिया। And in 1 Corinthians chapter 11 verse 23 and 24 says the bread represents the flesh of the Lord Jesus Christ. पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 और 24 पद ये बताता है वो रोटी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, उसके शरीर को दर्शाता है। And the Melchizedek served wine to Abraham. और मिल्कीसिदक ने दाखरस दिया अब्राहम के लिए। And the Lord Jesus did the same thing. वही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी किए। In Matthew chapter 26 verse 27 and 28, मत्ती 26 अध्याय का 27 और 28 पद, he took the cup of wine and he blessed it and he gave it to his disciples. दाखरस के इस प्याले को उठाया, उन्हें धन्यवाद देकर अपने चेलों को दिया। And 1 Corinthians chapter 11 verse 25 says the wine represents the blood of the Lord Jesus. पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 25वां पद ये दर्शाता है कि वो दाखरस प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। So the Melchizedek made after the Son of God did the exact same thing like what the Lord Jesus did. इसलिए मिल्कीसिदक जो परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया है,
ठीक वैसा ही जैसे यीशु ने किया उन्होंने भी किया है। Now, after serving the communion to Abraham, अब्राहम को प्रभु भोज बांटने के बाद, and the communion is a symbol of life and abundant life, और ये प्रभु भोज और जीवन परमेश्वर में बहुतायत के जीवन को दर्शाता है। now God comes and makes a covenant with Abraham. तब परमेश्वर अब्राहम से एक वाचा बांधते हैं। You know, Abraham's body was physically dead, incapable of giving birth to a child. आप जानते हैं अब्राहम का शरीर वो शारीरिक रीति से एक बच्चे को जन्म देने की योग्य में नहीं था। So the bread and the wine that he received quickened his body. इस वजह से वो रोटी और दाखरस उसने स्वीकार किया है, उसके शरीर को जागृत कर दिया। This is another supernatural miracle that happens when we take the Lord's Supper in a proper, justly manner. और यही अलौकिक चमत्कार हर एक के जीवन में होता है तब वो व्यक्ति धार्मिक रीति से और सही तरीके से प्रभु भोज में भाग लेता हो। In 1 Corinthians chapter 11, it is written very clearly, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, before partaking the Lord's Supper, परमेश्वर के भोज में भाग लेने से पहले a person should examine their heart. व्यक्ति अपने हृदय को जांचना है। Is there sin in their heart, sin in their minds? क्या अपने विचारों में और मनों में पाप है क्या? They should examine their life if they are walking justly and righteously before God. अपने आप को जांचना है कि आप परमेश्वर के सामने धार्मिक रीति से और सही तरीके से साथ साथ चल रहे हो। If there is any shortcoming, अगर कोई उनके अंदर कमियां हो, then we humbly confess our sins. नम्र तरीके से हमारे पापों को अंगीकार करते हैं। Then after, when you partake the Lord's flesh and blood, तब जब आप परमेश्वर के शरीर और उसके लहू में भाग लेते हैं, the word of God promises 3 blessings. परमेश्वर के वचन 3 वायदा हमें देता है। 1, it will keep us from sickness. पहला, वो हमें पाप से बचा के रखेगा। We'll have divine health. दैवीय सेहत हम पाएंगे। Secondly, there will be no weakness in our life. दूसरा, हमारे जीवन में कोई कमजोरी नहीं होगा। No weakness in the body causing this pain or that pain. शरीर में कोई ऐसे कमजोरी नहीं होगी जिससे कि यहाँ दर्द वहां दर्द रहे। Thirdly, a complete life. तीसरा, एक संपूर्ण जीवन। What do we mean by complete life? संपूर्ण जीवन का मतलब क्या है? The complete life means that a person is apportioned to live up to 70 or 80 years. संपूर्ण जीवन का मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन के संपूर्ण भाग 70 या 80 साल तक, And people die before that. लोग उससे पहले मर जाते हैं। And I'm sure you have heard some people even living beyond 80 years. निश्चय जानता हूं आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो 80 साल से भी ज्यादा जीते हैं। But if you look at many people who die, मगर उन लोगों का अगर आप देखेंगे जो पहले मर जाते हैं, they don't sleep in the Lord. वो परमेश्वर में सोए नहीं हैं। Either even in old age they die of sickness, हो सकता है बुजुर्ग अवस्था में बीमारी में मर जाते हों, or they die some horrible deaths. यानी तो एक बुरी मौत मरते हैं। Very, 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 very few peacefully sleep in the Lord. बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर में शांतपूर्वक सो जाते हैं। Let me tell you this wonderful testimony of a man of God who lived in the US called Kenneth E. Hagin. एक अद्भुत गवाही में बताना चाहता हूँ एक अद्भुत प्रभु के दास जो यूएसए में थे, केनेथ ई हेगिन। Now he lived up to about 80 years old. और वो तकरीबन 80 साल तक जिए थे। Wonderful, very God-fearing man of God. बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के भय मानने वाले प्रभु के दास। He walked with God in faith and in love. विश्वास और प्रेम में परमेश्वर यीशु के साथ साथ चलते आए। Never criticized any person but walked in love. किसी का आलंकन नहीं किया मगर प्रेम में चलते आए। Established a wonderful ministry in the US. अमेरिका के अंदर एक अद्भुत सेविकाई की स्थापित किए। And the ministry grew wonderfully.
वो सेविकाई बहुत ही अद्भुत रीति से बढ़ने लगा। Now he has crossed 80. अब वो 80 पार कर चुके हैं। One day he got ready as usual to have breakfast. एक दिन वो आम रीति से जैसे नाश्ते के लिए तैयार होते हैं, नाश्ते के लिए तैयार हुए। So he was smartly dressed in a suit, अच्छे तरीके से सूट पहने हुए थे came and sat by the dining table, और वो भोजन के उस मेज के बगल में बैठे। and his beloved wife was waiting for him. उनके प्रिय पत्नी उनके लिए इंतजार में थी। Both of them sat on the opposite end of the table, उस मेज के दोनों तरफ में वो बैठ गए and they bowed their head to say a word of thanks and grace to God for the food. अब वो सिर झुकाने लगे अपने भोजन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए। After Brother Hagin said, Amen, जिस क्षण भाई एगिन ने आमीन बोला, lifted up his head and looked at his wife. अपने सिर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखे, She looked at him. उन्होंने उनको देखा, He smiled at her. उनके पर वो मुस्कुराने लगे, She smiled at him. उन्होंने भी उनके लिए मुस्कुराए And then pop, he just dropped like that. और अचानक अपने सिर झुका दिया। He was just taken home to heaven. और वो अपने स्वर्ग के घर उठा लिए गए। Not a single sickness in his body. उनके शरीर में एक भी बीमारी नहीं था। This is what it means to live a complete full life. और इसी का मतलब है कि संपूर्ण जीवन जीना। And then you don't just die. और तब आप सिर्फ मरते नहीं हैं। This is like a rapture, you know. और ये एक जी उठाने के समान है। ये You are just taken by the Lord. आप परमेश्वर के द्वारा उठा लिए जाते हैं। These are the blessings you get when you rightfully and properly and fearfully partake of the Lord's body and His blood. यही आशीष आप स्वतंत्र करते हैं जब आप प्रभु के भोज में सही तरीके से, सही रीति से, बड़े डर के साथ आप भाग लेते हो। Only God can draw a person to Himself. सिर्फ परमेश्वर ही एक इंसान को अपनी ओर खींच सकते हैं। We can make our desires known to God, हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के लिए जाहिर कर सकते हैं, but only He can say, "Come." वो ही मात्र कह सकते हैं आओ। We read of a wonderful incident in Exodus chapter 24 verses 9 to 11. एक अद्भुत घटना निर्गमन 24 अध्याय के 9 से लेकर 11 पद में पढ़ते हैं, Where the Lord invited 74 leaders of Israel to come and dine with Him on Mount Sinai. जहां परमेश्वर ने 74 उन लोगों को बुलाया। परमेश्वर ने इस्राएली प्राचीनों को उनके साथ भोज करने के लिए सीनाई पर्वत पर। There they ate and they drank in the presence of God. प्रभु के उपस्थिति में उन्होंने भोजन खाया और उन्होंने मदाक रस पिए। God served them this food from heaven after they had made a covenant with God. इस अद्भुत भोजन को परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए बांटा जब उन लोगों ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी तब। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बेटे बेटियां, God is a covenant keeping God. परमेश्वर वाचा निभाने वाला परमेश्वर है। After giving us His own body and His own blood, हमारे लिए अपनी शरीर और लहू को देने के बाद the Lord Jesus made a new covenant with us. प्रभु यीशु मसीह ने हमसे एक नई वाचा बांधा है। In John chapter 15 verse 13 you read, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, a new covenant I make with you, एक नई वाचा मैं तुमसे बांधता हूँ that you love one another. कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। That is the new covenant. यही नई वाचा है। Amen. आमीन। Meditate on this till we meet in the next lesson. अगले पाठ में मिलते तक इस विषय पर मनन करते रहिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दें। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए।
एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।